بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانس بھی نہ لی جاتی تھی، ایسے میں میری دیورانی تین سویٹر پہن کر رکھتی اور دوپہر کے 2 بجتے ہی ایک موٹا کمبل اپنے جسم پر لپیٹ لیتی۔ پوچھنے پر کہتی مجھے بیماری ہے اور اس کا علاج یہی ہے، لیکن مجھے حیرت تب ہوتی جب وہ وہی کمبل اوڑھے باتھ روم میں بند ہو جاتی اور اس کمبل کو فوراً دھو کر گیلا ہی الماری میں رکھ کر تالا لگا دیتی۔ اس کی حرکتیں مجھے مشکوک لگنے لگی تھی، اسی لیے ایک روز جان پوچھ کر جیسے اس نے کمبل الماری میں رکھا، میں نے موقع پاتے ہی وہ کمبل اس کی الماری سے چوری کر لیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میرا نام سمرا ہے۔ سب رشتوں کی طرح میری شادی بھی ایک رشتے کرانے والی نے ہی کروائی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر رشتے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ خاندان میں کچھ لوگ اچھے نہیں لگتے اور کچھ سے ویسے ہی کوئی نہ کوئی اختلاف نکل آتا ہے، جس سے رشتے کے لیے باہر ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی تھا۔ پپھو ایک ہی تھی، اس کے تو بچے ابھی چھوٹے تھے، کیونکہ پپھو جو سب سے چھوٹی تھی۔ سب سے بڑے خاندان میں میرے ابا ہی تھے، اور ایک ان سے چھوٹے میرے چچا تھے، جن کا بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے چھوٹا ہی تھا، کیونکہ ان کی بڑی بیٹی میری ہم عمر تھی۔ اس طرح خاندان میں اور کوئی بچہ نہیں تھا، اور امی کی طرف کے رشتہ داروں کی تو کیا ہی بات تھی۔ ایک خالہ تھی، لے دے کر ان کے بیٹے نے ابھی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ خالہ کا تو ارمان تھا کہ مجھے اپنی بہو بناتی، مگر بیٹے نے اس ارمان پر پانی پھیر دیا تھا، اور اب اماں نے بھی میرا رشتہ باہر ہی دیکھ لیا تھا۔ اچھے لوگ تھے، اماں اور ابا کو کافی رشتوں کے بعد یہ رشتہ ہی میرے لیے مناسب لگا تھا، تو انہوں نے کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر شادی کی تیاری کرنی شروع کر دی تھی، اور پھر کچھ ہی عرصے میں میری شادی ہو گئی تھی، اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ گئی تھی۔ یہاں سب کچھ ہی نیا تھا، دل بھی گھبراتا تھا کہ جانے کیا ہو، مگر ایک نہ ایک دن تو ہر لڑکی کو ہی اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اس دنیا کی رسم ہے، اور رسم تو جیسی بھی ہو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ویسے بھی میں اماں ابا کی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی، سب سے بڑی جو تھی، تو اماں اور ابا سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ خاندان کی بھی پہلی بچی ہونے کی حیثیت سے دادی بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اتنے پیار کرنے والوں کے بیچ میں سے یہاں آ جانا میرے لیے کوئی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ شادی ہو گئی تھی اور اب میں اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا تھا، اور میرے سسرال والے بھی اچھے لوگ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی بہت سخت مزاج کے تھے۔ میری ساس ایک نہایت احساس کرنے والی خاتون تھی، اور سسر تو تھے ہی نہیں۔ میرے شوہر 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 1 بہن۔ ایک بہن دونوں بھائیوں سے بڑی تھی، اس کی شادی میری شادی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور دوسرے نمبر پر میرے اپنے شوہر تھے، اور ان سے چھوٹا ان کا ایک بھائی اور بھی تھا۔ گھر میں سب لوگ ہی اچھے اور خوش مزاج تھے، میرا شوہر بھی اور میرا دیور بھی۔ میرا دیور تو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز تھا، جیسے وہی میرے ساتھ آیا ہو، اور وہ بھی مجھے ہمیشہ بڑی بہن سمجھ کر ہی بات کیا کرتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے، اور میری ساس نے سارے گھر کی ذمہ داری مجھے دے رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اس گھر کو چلایا تھا اور سنبھالا تھا، اور اب یہ کام مجھے کرنا ہے۔ میں نے بھی ہنسی خوشی ان کی بات مانتے ہوئے گھر کا سارا نظام اپنے سر لے لیا تھا، اور اب گھر کو میں اپنی مرضی سے ہی چلاتی تھی۔ میری ساس نے کبھی کسی چیز کی شکایت مجھ سے نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسی غلطی کی تھی کہ ان کو کسی بھی قسم کی شکایت کا کوئی موقع ملتا۔ میں ہر کام ان کے بتانے کے مطابق کیا کرتی تھی، جیسا وہ کہا کرتی سب ویسا ہی کیا کرتی تھی، اور میری یہی بات ان کو سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنے سارے خاندان میں میری تعریفیں کیا کرتی تھیں۔ کوئی بھی گھر پر آتا تو ان کو خوش ہو کر بتایا کرتی کہ میری بہو اتنی اچھی ہے۔ مجھے بھی اپنی تعریفیں سن کر خوشی ہوا کرتی تھی، اور اس سب کی وجہ میری ماں تھی۔ انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ کس طرح سسرال میں رہنا ہے، اور ان لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان کی ساری باتیں ماننی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو کبھی بھی ساس نہیں سمجھا تھا، بلکہ ان کو ہمیشہ ہی اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔
और ये भी सच था कि वो भी मुझे अपनी बेटी ही समझा करती थी। हमारा रिश्ता एक मिसाली रिश्ता था। मेरा शौहर भी इस बात से खुश था कि चलो इस घर में वो हर घर वाली सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, और ये भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं था। घर का सुकून ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर घर में सुकून हो तो इंसान खुश रहता है, उसका दिमाग अच्छा काम करता है, वो खुश मिजाज रहता है। लेकिन अगर माहौल अच्छा ना हो तो इंसान तंग आ जाता है, बेजार और चिड़चिड़ा होने लगता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि अपने घर के माहौल को अच्छा रखें, ताकि उसमें रहने वाले आपकी अपने किसी परेशानी में मुब्तला ना हों। और देखा जाए तो ज़्यादातर नफ्सियाती मसाइल भी इसी वजह से होते हैं कि लोगों के घरों का माहौल अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है। हर वक्त के लड़ाई झगड़े इंसान को नफ्सियाती बना देते हैं, और घर का सुकून औरत की जिम्मेदारी ज़्यादा होता है। मर्द तो घर में मौजूद ही कम होता है। अब मैं अच्छी तरह से इस घर में सेट हो गई थी। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, और इस 1 साल में मेरी इस घर में कदर पहले दिन से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और मुझे इस ख़ानदान के सभी लोग अच्छे से जानने लगे थे। मेरी सास का कहना था कि उनके पूरे ख़ानदान वाले अपनी बहुओं को मेरी मिसालें देते हैं। मेरी सास को खुशकिस्मत कहते हैं कि उनको बहू के रूप में मैं मिली थी। मेरे देवर की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और अब मेरी सास उसके लिए रिश्ता तलाश करने लगी थी। मेरी अपनी कोई बहन थी नहीं, होती तो उसका रिश्ता लेती, मगर अब जो भी रिश्ता देखती लड़की देखने मुझे भेज दिया करती थी। उनका कहना था कि मैं देखभाल कर कोई अपने जैसी ही तलाश करूं, मगर शक्ल देखने से लोगों के किरदार का कहाँ पता चलता है। इसीलिए तो हमें लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। किरदार हमेशा वास्ता पड़ने पर ही खुलते हैं। कौन कैसा है ये उसी वक्त पता चलता है जब हम कुछ वक्त उसके साथ गुजार लेते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए शामिल कर लेते हैं। उस वक्त लोगों के असली चेहरे और किरदार सामने आते हैं। ऐसे में मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि मुझे अपने जैसी कोई तलाश करनी थी। मुझे क्या पता कौन मेरे जैसी होगी। खैर, मेरी सास मुझे जहाँ भी जाने का कहती मैं उनके साथ जाकर लड़की देखाती, और घर आकर जो जो मुझे लगता उनको बता देती। इसी तरह हम लोगों ने कोई 5 रिश्ते देखे थे, मगर मेरी सास को कोई भी इतना पसंद नहीं आया था। हालांकि वो सभी अच्छे थे, लड़कियां भी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, मगर जाने क्यों उनके दिल को कोई अच्छी नहीं लगी थी। ऐसे में मैं क्या कह सकती थी, उनकी अपनी मर्जी थी, वो जो करती अच्छा ही करती। इसी तरह वक्त गुजरता गया, और अब देखे गए रिश्तों की तादाद कोई 10 से 15 हो गई थी। मेरी सास मुझे भी साथ ले जाया करती, और फिर घर आकर रिश्ते से इनकार कर दिया करती। मुझे तो अब उनके साथ जाना भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे किसी की बेटी को देखना और फिर मना कर देना अच्छी बात नहीं थी। मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि उनको ऐसा करने से रोकूं, मगर हमेशा यही सोचकर खामोश हो जाया करती थी कि वो कहीं उनका दिल मुझसे ख़राब ना हो जाए और मेरी बनी बनाई सारी इज्जत खाक हो जाए। जो मकाम मुझे मिला था वो मेरी सास की बदौलत ही तो मिला था, और अब उनके लिए कोई भी ऐसी वैसी बात करके मैं अपना बना बनाया रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। जो भी थी तो वो मेरी सास ही। क्या पता कौन सी बात उनको बुरी लग जाए और वो मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जाए। ऐसे में उनसे कोई भी बात करना अपने आप को उनकी नज़रों में लाना था। इसीलिए मैं अपनी माँ के कहने के मुताबिक बस उनकी हाँ में हाँ मिला लिया करती थी। वो जो भी करती थी मुझे भला इससे क्या फ़र्क पड़ता था। वो अपने घर जैसी भी बहू लाएं, मुझे उससे क्या था। और अच्छा था कि कोई छानबीन करके लाती। ऐसे में मेरी भी वो पहले वाली इज्जत बनी रहती। इस काम में हम दोनों लगी हुई थी। मेरी सास को अपने छोटे बेटे की शादी की भी जल्दी थी, और करनी भी किसी ऐसी लड़की से थी जो सलीकेमंद हो। जो भी था, मगर आजकल एक अच्छी और सलीकेमंद लड़की मिलना भी कोई आसान काम तो ना था। जिस तरह लड़कियों के रिश्ते में मुश्किल होती है, अब तो वही लड़के के रिश्ते में भी मुश्किलात होने लगी हैं। कोई लड़की किस तरह घर चलाती है ये भी तो ज़रूरी है। ना सिर्फ उसकी पढ़ाई और खूबसूरती पर तो गुजारा नहीं होता। यही हाल यहाँ भी था, और करते करते बिलाखिर एक ऐसी लड़की मिल ही गई थी। रिश्ते वाली खाला ने सारी तफसील पहले ही बता दी थी। लड़की एक ही बहन थी और अपनी माँ के मुताबिक काफ़ी सुलझी हुई और सलीकेमंद भी थी।
بس میری ساس کو اور کیا چاہیے تھا، وہ اگلے ہی دن مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئی تھی، اور گھر بھی اچھا تھا۔ گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی واقعی رکھ رکھاؤ والی ہیں۔ میری ساس کو تو وہ کافی اچھے لوگ لگے تھے، اور ایسے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ کہنے کو انہوں نے ساری ذمہ داری مجھے سونپ رکھی تھی، مگر فیصلہ تو ابھی بھی وہ خود ہی کیا کرتی تھی، اور انہوں نے اس لڑکی کے حق میں فیصلہ کر لیا تھا۔ ماریا ان کو کافی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے گھر آ کر میرے شوہر، دیور اور اپنی بیٹی سے بات کی تھی۔ ماریا سب کو ہی اچھی لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری ساس کی پسند تھی۔ اس گھر کا ایک ہی اصول تھا کہ جو بھی بات میری ساس نے کہہ دی وہی ہوگا۔ سب لوگ ہی ان کے فرما بردار تھے، اور یہ ایک اچھی بات تھی۔ مجھے بھی انہوں نے ہی پسند کیا تھا، اور عارف نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور خاموشی سے شادی کے لیے مان گئے تھے۔ اور ایسا ہی ماجد نے کیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی، اور کہا تھا کہ جیسا ان کو ٹھیک لگے وہ کر سکتی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، 1 سال سے جو انگوٹھی بنا کر انہوں نے رکھی تھی، اور ابھی تک ان کو وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی جس کو وہ یہ پہنائے، وہ اب مل گئی تھی، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہی جا کر اسے یہ انگوٹھی پہنا دیتی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان کو اب کل کا انتظار تھا، اور اگلی صبح ہوتے ہی میری ساس نے ماریا کے گھر فون کر کے ان سے انگوٹھی پہنانے کے لیے آنے کا وقت مانگا تھا، جس پر انہوں نے ان کی مرضی کا ہی جواب دیا تھا کہ وہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک 2 دن بعد میں، میری نند، میری ساس اور میرا شوہر، ہم لوگ ان کے گھر موجود تھے۔ انگوٹھی کے ساتھ کچھ اور بھی رسمی سا سامان تھا، جیسے کہ کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی تھے۔ اس طرح منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کی گئی تھی، اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ میری ساس کو تو شادی کی پہلے ہی زیادہ جلدی تھی، اسی لیے وہ لمبی چوڑی کوئی تاریخ رکھنے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کو اگلے مہینے کی ہی کوئی تاریخ چاہیے، جو ہر لڑکی والوں کا کہنا تھا کہ ان کو کچھ وقت چاہیے تیاری کا، مگر میری ساس کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ انہوں نے ساری باتیں ایک طرف کرتے ہوئے اگلے مہینے کی تاریخ بھی رکھ دی تھی، اور مجھے ساری تیاری کرنے کا کہا تھا، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ میری ساس نے ماریا کے گھر پر بھی میری کافی تعریفیں کی تھی۔ ان کو بھی بتا دیا تھا کہ شادی کی ساری تیاری میں نے ہی کرنی ہے، جس پر مجھے ماریا اور اس کی ماں کے تاثرات کچھ اچھے نہیں لگے تھے، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، اور گھر واپس آتے ہی اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری نند بھی کبھی کبھار وقت نکال کر آ جایا کرتی تھی میری مدد کو، مگر زیادہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ بازار چلی جایا کرتی تھی، یا کبھی محلے کی آپا کوثر کے ساتھ۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ میری ساس کی ان کے ساتھ کافی بنتی تھی، اور وہ تھی بھی ایسی ہی شوخ مزاج۔ ان کو یہ شادی بیاہ کی تیاری کا کافی تجربہ تھا۔ اس محلے میں کسی کی بھی شادی ہوا کرتی تھی تو سب ان کو تیاری کے لیے ساتھ لے کر جایا کرتے۔ ان کو ایک تو چیزوں کی اچھی پہچان تھی، اور اوپر سے ان کی قیمت بھی کم کروانے میں ماہر تھی، اور ان کی پسند بھی اچھی تھی، سب کو اچھی لگتی تھی۔ میری ساس نے بھی ان کو میرے ساتھ لگا دیا تھا، جس سے مجھے کافی مدد مل جایا کرتی تھی۔ سب تیاری آہستہ آہستہ کرتے پوری ہو چکی تھی، اور اب شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ سارے فنکشن اچھے سے ہوئے تھے، اور ماریا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی تھی، ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ میری ساس نے اسے اگلے دن ہی اپنی اور میری اہمیت اس گھر میں بتا دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسے کسی طرح یہاں اس گھر میں رہنا ہے، اسے اپنا گھر سمجھ کر اور گھر کے ہر فرد کو اپنا سمجھ کر، جس پر ماریا نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا اور کچھ نہ بولی تھی۔ نئی شادی ہوئی تھی، اسی لیے ابھی تو ان کی دعوتیں وغیرہ چل رہی تھیں۔ گھر کی ذمہ داری ابھی ماریا پر نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی بھی سارا کام مجھ پر ہی تھا، اور میں تو اچھے سے کام کر لیا کرتی تھی، مجھے مشکل نہیں ہوتی تھی، عادت سی بن گئی تھی۔ میں نے ماریا کو کبھی کسی کام کا نہیں کہا تھا، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی تھی، جبکہ اب تو اس کی شادی کو مہینہ ہونے والا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ خود ہی کر لے گی جب اس کا دل راضی ہوا، تو ایسے زبردستی اس پر کیا بوجھ ڈالنا۔ ویسے بھی پہلے بھی تو سارا کچھ میں ہی سنبھالا کرتی تھی، تو ایسے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ سارا کچھ ویسے ہی چل رہا تھا جیسا پہلے چلتا تھا۔
गर्मी का मौसम था। जून जुलाई की सख्त तरीन गर्मी थी, जहां लोग एसी और एयर कूलर के सामने बैठा करते थे और उसके अलावा तो सांस भी नहीं लिया जाता था। ऐसे में हमारे घर में एक अजीब ही मंजर देखने को मिलता था, और वो ये था कि मेरी देवरानी इस मौसम में भी 2-2, 3-3 स्वेटर पहन कर रखती और दोपहर के 2 बजते ही एक मोटा कंबल अपने जिस्म पर लपेट लेती। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगती थी, मगर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान न देती। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये काम अब रोज़ ही घर में होने लगा था। इस वक्त मेरी सास मेरी नंद के घर गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। उनके जाने के बाद ये सब इस घर में होना शुरू हुआ था, जो कि मेरी तो समझ से बिल्कुल ही बाहर था। एक दिन मैंने कुछ सोचकर उससे पूछ लिया था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है, तो उस पर उसने कहा कि उसे कोई बीमारी है और उसका इलाज यही है। इससे ज़्यादा ना उसने मुझे कुछ बताया और ना ही मज़ीद मेरे पूछने की कोई वजह थी। मैं उससे और कुछ पूछती भी तो क्या पूछती, उसने जवाब दे दिया था और सारी बात ही ख़त्म कर दी थी। मगर मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है जिसका ये इलाज हो। कोई तो वजह थी इस सब के पीछे, मगर क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं थी और मैंने जानने की कोशिश भी उस वक्त नहीं की थी। मगर मेरी हैरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरी देवरानी वो कंबल लपेटते ही बाथरूम में घुस जाती और जब वापस आती तो वो कंबल धोकर गीला ही अपनी अलमारी में रख देती और उसे ताला लगा देती। बाकी बातें अगर मान भी ली जाएं तो ये बात बड़ी मशकूक लगती थी मुझे। इस पर अब शक होने लगा था, क्योंकि वो मुझे मशकूक लगती थी, और होता भी क्यों ना, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे वो मशकूक ही लगती, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। ऊपर से मेरी सास भी तो घर पर मौजूद न थी जिसको मैं ये सारी बातें बता सकती, और अपने शौहर से उसकी क्या बात करती। ये तो वैसे ही अजीब लगता था कि मैं उससे कोई भी बात करती। इसीलिए फ़िलहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और सही वक्त का इंतज़ार करने लगी थी। मुझे इंतज़ार था कि मेरी सास घर आ जाती तो मैं ये सारी बातें उनको बताती। इसीलिए मैं उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी, मगर उनको आने में अभी शायद देर थी, और मेरी देवरानी रोज़ ही ऐसा किया करती थी। मुझसे रहा न गया, और एक दिन जब वो बाथरूम से बाहर कंबल धो कर निकली तो मैंने मौका मिलते ही कंबल उसकी अलमारी से चुरा लिया और उसे अपने कमरे में ले आई थी। मगर जैसे ही मैंने उस कंबल को खोला तो मेरी जान निकल गई थी, ये देखकर कि उस कंबल के अंदर से मेरे शौहर के कपड़े और मेरे कपड़े निकले थे। मुझे समझ नहीं आया था कि ये सब क्या था। उसके कंबल से मेरे शौहर का और मेरा सामान कैसे निकल सकता था? उसके पीछे क्या वजह थी? आखिर को ऐसा क्यों किया था? मैंने कुछ सोचते हुए वो कंबल वापस उसकी अलमारी में रख दिया और अपने शौहर के और अपने कपड़े उसमें से निकाल कर बाहर रख लिए थे। कंबल को तो वापस रखाई थी, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कोई बड़ी बात थी इन सब के पीछे जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैंने सोचा था इस बात का जिक्र अब मैं अपने शौहर से करूंगी, और यही सोचकर मैंने रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। रात को उनके आते ही मैंने सारी बात उनको बताई, जिस पर उनका कहना था कि ये ख्वामख्वाह का मेरा वहम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि मारिया ने कपड़े धोए होंगे तो साथ में हमारे कपड़े भी धुल गए होंगे, जो कि मैं उसके कंबल के साथ ही उठा कर ले आई। मगर ऐसा नहीं था, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही कहाँ थे। उनका कहना था कि वो फारिग रह रहकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, जब ही ऐसी बातें सोचने लगी हूँ। उनके इस तरह कहने से क्या होता था? हकीकत तो मुझे मालूम थी कि क्या थी, और अब मुझे इस बारे में अपनी सास से बात करनी थी। उन्होंने मेरी नंद के घर से कल आने का कहा था। आरिफ से उनकी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने आरिफ से उनको कल लेने के लिए आने का कहा था। मुझे तसल्ली थी कि वो मेरी बात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगी, इसीलिए मुझे कल का इंतज़ार था, और सोचा था कि मारिया को जब वो खुद ऐसा करते देखेंगी तो शक की कोई बात रह ही नहीं जाएगी। वो खुद ही उससे इन सब की वजह पूछ लेंगी, जो कि उसे हर हाल में बतानी ही पड़ेगी। पूरा दिन इसी तरह गुजरा था, और फिर रात के बाद अगली सुबह आरिफ ने आज काम से छुट्टी कर ली थी, क्योंकि उनको आज मेरी नंद के घर अपनी अम्मा को लेने जाना था। नाश्ता करते ही वो घर से निकल गए थे। मैं भी उनको भेजकर अपने कामों में लग गई थी। आज मैंने एक बात नोट की थी, और वो ये थी कि मेरी देवरानी ने आज वो सब नहीं किया था जो वो इतने दिन से कर रही थी, जबकि मैंने तो उसे ये बात नहीं बताई थी कि आज अम्मा घर आ रही थी।
تو उसे कैसे पता चला था? खैर जो भी था, आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो उसने ऐसा करना था। क्यों वो रोज ऐसा करती थी? आज उसे पहली बार मैंने किचन में देखा था, वरना जब से शादी हुई थी वो तो एक दिन भी काम करने नहीं आई थी। तो आज कैसे आ गई थी? उसने आते ही खाना बनाना शुरू कर दिया था और उसे काम करता देखकर मैंने सोचा कि अब अगर ये कर रही है तो मैं रहने देती हूँ। खाना ही तो बनाना था, बाकी सारा काम तो मैं पहले ही कर चुकी थी। अब खाना एक ही इंसान बना सकता था जो कि उसने बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं क्या करती? यही सोचकर मैं अपने कमरे में चली आई थी। दोपहर के बाद का वक्त था, अभी शाम नहीं हुई थी, जब मुझे घर में अपनी सास और अपने शौहर के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे पता चल गया था कि वो लोग घर आ चुके हैं, इसीलिए मैं अपने कमरे से निकलकर उनसे मिलने चली आई थी। मुझे देखकर मेरी सास ने अजीब नज़रों से देखा था। जब मैं उनके पास आकर बैठी और उनका हाल अहवाल पूछा तो उन्होंने बस हूँ हाँ में ही जवाब दिया था। उनके रवैये से साफ लग रहा था कि कोई बात तो थी, जिस वजह से उनका रवैया इस कदर बेगाना था मेरे साथ। और थोड़ी ही देर में बातें करने के बाद उसकी वजह भी सामने आ गई थी। उनका कहना था कि नई बहू को काम पर लगा दिया मैंने उनके जाने के बाद, क्योंकि मारिया ने उनको बता दिया था कि ये खाना उसने बनाया है, मगर ये नहीं बताया था कि उसने अपनी मर्जी से बनाया था। मैंने तो उसे नहीं कहा था बनाने को, मगर उसने शायद जानबूझकर ऐसा किया था। मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। खैर वो दिन तो गुजरा क्या था, और अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था, जब वो दोबारा से वही सब करती जो वो इतने दिन से कर रही थी। मगर आज भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये क्या था? अब वो आम लोगों की तरह रहने लगी थी। वो कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करती थी, मगर मुझे उस राज का पता तो लगवाना ही था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से इस बात का जिक्र किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये सब मैं क्या फजूल बातें कर रही हूँ। उन्होंने उल्टा मुझे ही सुनाया था और कहा था कि अगर ऐसी कोई भी बात है तो फिर वो अब ऐसा क्यों नहीं करती। मेरी सास का कहना था कि मैं उससे सिर्फ जानबूझकर ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी सास के दिल में अपनी जगह बनाए जैसे मेरी है। उनका कहना था कि मुझे ये डर है कि वो मेरी जगह न ले ले, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ और उसके बारे में ये सब बोल रही हूँ। उनका कहना यह भी था कि वो बेचारी तो मेरी तारीफ करके गई थी कि भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैं उसके बारे में ये सब कह रही थी। मगर मुझे हैरत थी कि उसने मेरी तारीफ क्यों की थी मेरी सास के सामने, जबकि वो तो मुझसे बात भी नहीं किया करती थी। तो अब मेरी हिमायत क्यों की थी? वो क्या कर रही थी और क्या करना चाह रही थी, मेरी समझ से बाहर था। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी, और अब क्या कहती उनको। मुझे पता चल गया था कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो उस वक्त मारिया की बातों के असर में थी, जब ही उन पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं होना था। इसीलिए मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे। मेरी सास अब अक्सर बात बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। उनका रवैया मेरे साथ पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे वो पहले मेरी तारीफें किया करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी बदल गई थी, जबकि दूसरी तरफ मारिया से उनकी काफ़ी बनने लगी थी। वो उसी के हाथ का खाना खाती, उसी की तारीफें करती, और तो और अपने साथ कहीं भी लेकर जाना होता तो उसे ही लेकर जाया करती थी। मारिया मेरी सास के काफ़ी करीब रहने लगी थी, और अब मैंने भी अब दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो जो भी करें, जैसे भी करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं बस खामोशी से अपना काम करती थी और अपने कमरे में चली जाया करती थी। बात अब इस कदर बढ़ गई थी कि मेरी सास तो मुझे ताने देने लगी थी कि अपने बेटे के लिए उन्होंने मेरा रिश्ता जाने क्या सोच कर ले लिया। उनको तो कोई मारिया जैसी लड़की मिलनी चाहिए थी। और कुछ अर्सा पहले ही की बात थी जब वो मेरे देवर के लिए मेरी जैसी लड़की तलाश करने के चक्कर में जाने कितनी ही लड़कियों को इनकार कर चुकी थी। उनकी सारी बातें एक तरह थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मारिया की इसलिए ज़्यादा हिमायत करने लगी थी क्योंकि मेरा देवर उन दिनों काफ़ी बीमार रहने लगा था और मारिया उसका ख्याल रखती थी। शायद यही वजह थी जब वो उनको मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। मगर मुझे उससे कोई हसद नहीं था। अच्छा था, उसने उनके दिल में अपना मकाम बना लिया था। मगर उन सब बातों के बावजूद वो मुझसे क्यों इस तरह का रवैया करने लगी थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी।
मगर इन सब बातों के पीछे क्या राज था, ये तो कोई भी नहीं जानता था। वो तो वक्त आने पर ही खुलना था और सबको ही हैरान कर देना था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था, मगर मेरे देवर की तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। डॉक्टर को तो जैसे कोई दवाई उस पर असर ही नहीं करती थी। वो ठीक होने की बजाय दिन ब दिन और बीमार होता चला जा रहा था। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ हैरान करने वाली थी वो था मारिया का रवैया, जो कि जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह की हालत उसके शौहर की थी उसे तो काफ़ी परेशान होना चाहिए था, मगर वो तो बिल्कुल मुतमईन सी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसका यही सुकून था जिसने मेरा सुकून बर्बाद किया था। अपनी सास से तो मैंने कुछ भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको तो मेरी कोई भी बात आजकल अच्छी नहीं लगती थी। और अपने शौहर से भी क्या बात करती, वो भी कहाँ मेरी बात पर गौर करते थे। उनको लगता था मुझे मारिया से हसद है, क्योंकि उसने मेरी जगह जो ले ली थी। मुझसे ज़्यादा अब वो अम्मा के करीब रहने लगी थी। उनको लगता था इसीलिए मैं मारिया के बारे में ऐसी बातें कहती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सारी बातें सच हुआ करती थीं, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा था कि कुछ दिन अपने घर चली जाती हूँ, शायद इसी से कुछ बेहतर हो जाए। और इस बात की इजाज़त मैंने अपने शौहर और अपनी सास से भी ले ली थी। मैंने आरिफ से कहा था कि वो मुझे कल जाते हुए मेरी अम्मा के घर छोड़ दें, जिस पर उसने हाँ कहा था। सारी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी, क्योंकि सुबह तो इतना वक्त कहाँ होता था, जल्दी जो घर से निकलना था। इसीलिए अब काम रात को ही निपटा कर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मगर जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह घर की परेशानी ही थी। जो भी था काफ़ी देर हो चुकी थी। आरिफ तो मुझे लगा था जाने कब से सो चुके थे। मैं भी आंखें बंद किए लेटी थी। अचानक ही मुझे कोई हरकत महसूस हुई थी और मैंने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा था कि आरिफ बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जा रहा था, और साथ ही साथ वो एक नज़र मुझ पर भी डाल लेता। मतलब वो ये समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ, मगर ऐसा नहीं था। मैं भी वैसे ही लेटी रही थी और उसके कमरे से निकल जाने का इंतज़ार करने लगी थी। उसके जाते ही मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा था तो आरिफ अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर उसके पीछे बाहर चली आई थी। पूरा घर देखा था, मगर वो तो कहीं भी नहीं था, और बाहर के दरवाजे पर भी ताला था। मतलब वो था तो घर में ही, मगर था कहाँ ये नहीं पता था। कुछ सोचकर मैंने कदम छत की तरफ बढ़ाए थे। अभी कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी जब मुझे किसी के बोलने और हंसने की आवाज़ें सुनाई दी थी। और आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, 2 लोगों की थी। और वो 2 लोग कौन थे ये भी मैं अच्छे से जान गई थी। जानती भी क्यों ना, मेरा पूरा दिन तो इनके बीच में ही गुजरता था। वो कोई और नहीं, मारिया और मेरे शौहर आरिफ की आवाज़ थी, जो एक दूसरे के साथ बातें करने में मसरूफ़ थे, और इस बात से अनजान कि कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो इस वक्त मेरे और मेरे देवर के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे पता चल गया था कि घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा था, और इन सबको प्लान किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने ही शौहर ने किया था। सुबह होते ही मैं अपनी सास से मिलकर अपने घर चली आई थी, और अभी तक मेरे दिमाग में उनके रात वाले जुमले चल रहे थे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं क्या कर सकती थी चुप रहने के अलावा। रात को वो दोनों फिर से छत पर मौजूद थे और बातें करने में मगन थे, जब उनको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। और वो ये कोई और नहीं बल्कि मैं और मेरी सास थे। मैंने उस रात उनकी सारी बातें सुनकर अपनी सास को बताया था, जिस पर उन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया था, मगर जब मैंने ये कहा कि वो दोनों रोज़ रात को छत पर मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आज भी वो ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए रात को ही सब पता चल जाएगा। मैं दोपहर को ही अपने घर से वापस आ गई थी और अपनी सास के कहने पर उसके कमरे में छुप गई थी, ताकि आरिफ और मारिया को पता न चले कि मैं आ गई हूँ और वो अपना प्लान न बदलें। इसीलिए मैंने वैसा ही किया था। उनके कमरे में ही बैठी रही थी और रात का इंतज़ार करने लगी थी, और अब वो दोनों हम दोनों के सामने मौजूद थे। मेरी सास ने पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, जिस पर मेरे शौहर आरिफ ने बताया कि वो और मारिया दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी सास कभी भी पसंद की शादी के हक में नहीं थी। वो हमेशा से अपने दोनों बेटों के लिए अपनी पसंद की लड़कियां लाना चाहती थीं। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर प्लान किया था। अपनी सास को मैं पसंद थी
और उनको मेरे देवर के लिए भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी। इसीलिए आरिफ ने मारिया को सब बताया और उसको मेरे जैसा बनाकर मेरी सास के सामने पेश किया, जिससे उन्होंने उसे मेरे देवर के लिए पसंद कर लिया था। उसके बाद आरिफ के कहने पर ही उसने मेरी तरह मेरी सास के दिल में अपनी जगह बनाई थी और उनको मेरे खिलाफ कर दिया था। मेरे देवर को भी वही गलत दवाइयाँ दिया करते थे ताकि उसके मरने के बाद मेरी सास मारिया की शादी आरिफ से करा देंगे। और वो कंबल वाला ड्रामा भी इसीलिए किया गया था ताकि मैं अपनी सास को ये सब बताऊं और वो मुझे मारिया के खिलाफ समझकर मुझे नापसंद करने लगें। मगर इन सारी हकीकत खुल गई थी और सारा सच सामने आ गया था, जिस पर मेरी सास ने मारिया को घर से निकल जाने का कहा था और आरिफ से भी कह दिया था कि अगर वो भी जाना चाहता है तो उसके साथ जा सकता है। वो दोनों ही उस घर से जा चुके थे, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा मेरी और मेरे देवर की ज़िंदगी मुतासिर हुई थी। हमें किस चीज़ की सज़ा मिली थी ये हमें नहीं मालूम था। मेरा देवर अब बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं भी अपने घर आ गई थी। आगे क्या करना था ये कहाँ सोचा था। कभी भी अपनी खुदगर्जी में आकर किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जो रिश्ता आप नहीं निभा सकते उसे जोड़े भी मत, क्योंकि उस एक रिश्ते पर जाने कितने लोगों की ज़िंदगी और उम्मीद जुड़ी होती है। अपने रिश्तों में खयानत ना करें। अगर किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं तो फिर कोशिश करें उसे सच्चे दिल से कबूल करके निभाएं भी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।